Good morning, class 11. Today we are going to start chapter 2 from Snapshots. The title of the chapter is The Address. Now, you all know what is address. Address means pata in Hindi. So, this is a story which is an account of a daughter who goes in search of her mother's belonging after the World War in Holland. When she finds those belongings, the objects evoke memories of her earlier life. However, she decides to leave them all behind and resolves to move on. So, during World War II, the Germans, the Nazis under Hitler, invaded Holland. Invaded means attacked, where 90% of the people were Jews. Many of the Jews fled in fear to other countries. Fled in fear means डर के मारे दूसरे देशों में चले गए. Thousands were imprisoned in concentration camp. और जो भाग नहीं सके उन्हें यातना means suffering camps में बंद कर दिया गया. A woman and her little daughter had also to leave their home. The woman left all her things with a woman known to her. After some time, the woman died. However, her daughter remembered the place where she used to live with her mother. Long after the war, she came to the town where she used to live with her mother. She went to meet the woman with whom her mother had left all her things. But the woman refused to recognize her because she did not want to return the things she had taken. In this story, the daughter describes how she felt during that visit and later on another visit. So we don't know the names of daughter and mother, only we know the surname of that lady who has taken those things, and her surname is Mrs. Darling. So the narrator of the story is the girl herself. So when she first went to meet Mrs. Darling, she rang the bell. A woman opened the door. The narrator asked, or the author asked, "Do you know me?" तो जब पहली बार वो लड़की मिसेस डॉर्लिंग से मिलने गई और उसने घंटी बजाई, तो मिसेस डॉर्लिंग ने दरवाज़ा खोला और इस लड़की ने पूछा कि आप मुझे जानती हैं. The woman looked searchingly at the narrator. She had opened the door only a chink. तो मिसेस डॉर्लिंग ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा और उन्होंने दरवाज़ा पूरा नहीं खोला था, थोड़ा सा खोला था. The narrator came closer on the step. The woman said, "No, I don't know you." तो जो ये लड़की थी वो नीचे खड़ी थी, तो उसने सोचा कि उन्हें दरवाज़ा पूरा नहीं खुला होने की वजह से मैं दिख नहीं रही होंगी, तो वो सीढ़ी चढ़ के ऊपर आई. इतने में मिसेस डॉर्लिंग ने उसको बोल दिया कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती. The narrator told the woman her mother's name and said that she was her daughter. तो इस लड़की ने अपनी माँ का नाम उन्हें बताया और बताया कि मैं उनकी बेटी हूँ. The woman held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. Her face gave no sign of recognition at all. जब नरेटर ने अपनी माँ का नाम बताया तो उस औरत ने, मिसेस डॉर्लिंग ने, दरवाजे पे ऐसा हाथ रखा कि वो और ज़्यादा ना खुल सके और उसके चेहरे पे अजीब से एक्सप्रेशन आए. लेकिन वो एक्सप्रेशन ऐसे नहीं थे जो ये शो करें कि वो उस लड़की को पहचानती हैं. She kept staring at the narrator silently. The narrator thought that she was perhaps mistaken. और मिसेस डॉर्लिंग उस लड़की को घूरती रही. उनके ऐसे घूरने से उस लड़की को ऐसा लगा कि शायद वो गलत एड्रेस पे आ गई है. Perhaps she was not the same woman. She had seen her years ago for a moment only. और उस लड़की ने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि सालों पहले उसने मिसेस डॉर्लिंग को कुछ पलों के लिए देखा था. But then the narrator looked at the dress the woman was wearing. She was wearing the green knitted cardigan that her mother used to wear. पर जब इस लड़की ने मिसेस डॉर्लिंग के स्वेटर, कार्डिगन है स्वेटर, ग्रीन कलर के स्वेटर को देखा जो कि हाथ से बुना हुआ था, और ये स्वेटर उसकी माँ ने बुना था. The wooden buttons had become pale from washing. और उस स्वेटर पे जो लकड़ी के बटन थे वो धुल धुल कर पीले पड़ गए थे. The woman saw that the narrator was looking at the cardigan and half hid herself behind the door.
जब मिसेस डॉर्लिंग ने ये देखा कि वो लड़की उनके स्वेटर को गौर कर रही है तो उन्होंने अपने आप को दरवाजे के पीछे छुपा लिया। द गर्ल नाउ न्यू दैट शी हैड कम टू द राइट प्लेस। और अब स्वेटर देखने के बाद उस लड़की को पूरा भरोसा हो गया था कि वो सही एड्रेस पे आई है। यू न्यू माई मदर, द नरेटर आस्क्ड। अब उसने लड़की ने जोर देकर बोला कि आप मेरी माँ को जानती थी। तो प्रश्न के उत्तर में उस लेडी ने क्या किया? हैव यू कम बैक, सेड द वुमन। आई थॉट नन ऑफ यू हैड कम बैक। कि तुम वापस आ गई? मैंने तो सोचा था तुम में से कोई भी वापस नहीं आएगा। ओनली मी, लड़की बोली, सिर्फ मैं आई हूँ। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। तो मिसेस डॉर्लिंग ने बहुत ही सीधे शब्दों में उससे कहा कि आई रिग्रेट मीन्स आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। तो लड़की गिड़गिड़ाई कि तुम्हें मैडम आपको पता है कि मैं आपसे मिलने के लिए ट्रेन से यहाँ आई हूँ और मुझे आपसे 2 सेकंड के लिए बात करनी है। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, सेड द वुमन, कम अनदर टाइम। और मिसेस डॉर्लिंग ने बड़े ही गंदे तरीके से ये कहा कि अभी मैं तुमसे बात नहीं कर सकती, अगर मुझसे बात करनी है तो कभी और आना। The woman cautiously closed the door as though no one inside the household should be disturbed. और उसके बाद मिसेस डॉर्लिंग ने बड़े ही धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि घर में किसी को पता न चले कि बाहर क्या हो रहा था। द नरेटर लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन। और वो लड़की जो कि इतनी दूर से मिलने आई थी उनसे, उसने घर के दरवाजे की नेम प्लेट देखी, डॉर्लिंग इट सेड। और नेम प्लेट पे क्या लिखा हुआ था? डॉर्लिंग, इन ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट इनेबल। और वो डॉर्लिंग काले अक्षरों में सफ़ेद कलर पे लिखा हुआ था। एंड अ बिट हायर द नंबर 46। और डॉर्लिंग के थोड़ा सा ऊपर लिखा हुआ था घर का नंबर 46। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुमारो विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर।